चल भैया, से शुरू करते हैं अंताक्षरी। लेकर प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। ठीक है ना? काम, यानी कि वर्क। वर्क से रिलेटेड होता है टाइम। ऑब्वियसली यू नीड टाइम, you need energy, you somehow also need skills or knowledge for that matter. You somehow also need a drive for that or motivation for that, some sort of salary as well to continue it, some sort of mission or a sense of meaning as well, and things like that. Work ultimately is action, and action is done largely for the reward, usually, or to avoid punishment. Correct? Correct. Okay, so let's move. Whether for the reward or for avoiding punishment, whether for meaning, mission, or for for salary, but there has to be a certain amount of drive, knowledge, and energy and time for sure, especially the time for sure. So we will take time and salary here. Correct? Let's move then. Ultimately, whatever you will do, work, you will do for someone. That someone obviously will have an ASL, male or female. Location you can divide in terms of countries or also in terms of state and city and things like that. And age, obviously, roughly you can divide between three: children, adults, and old. And then you can also divide it by 10 ages: 10, 20, 30, 40, and so on. Correct? So that is the case. And then we have got industries or sectors for that matter: agriculture, manufacturing, services. Correct? Let's move then. Let's talk about the agriculture sector then. Hmm. Agriculture ultimately depends upon rain largely, or temperature, also on the area of land. So rain, temperature, and area of land. Correct? These to become climate. As far as India is concerned, it has a monsoon climate. Correct? There is a certain amount of rainfall that happens. Then we can talk about India in terms of different climatic zones. Correct? Let's move. India, obviously, is in Earth. This is equator, Capricorn, and sorry, this is Tropic of Cancer, and then this is Tropic of Capricorn. A little bit kind of thing. And India is like this. So kind of north and south. This is Tropic of Cancer, and this zone usually have a lot of rain. I mean, not totally. You can say 10 degree almost, 10 degree here and there. This is almost 23 degree. This is equator, Cancer and Capricorn. So 10 degree zone here, 10 degree zone. This is excessive rainfall because temperatures are quite high. And then temperature starts decreasing to the pole. The same applies here as well. Starts decreasing to the pole. I mean, generally speaking, correct? So there obviously temperature comes from sun. So, and then there is hydrosphere on Earth, and then the water goes, and the water cycle determines. Water cycle largely determines rains. Not totally, but largely.
Correct. So in that sense, in one way or the another, you will have to understand climate, because climate not only affects the agriculture but also life as well. I mean, living in sense. Rainfall and temperature both determine that, and the same gear for as well. Correct. Uh, in that sense, there are different type of climates. There is obviously polar climate, and then there is temperate zones. Um, there is monsoon climate. What else is there? I don't know. I mean, some regions are dry, some regions are wet, some regions are hot, some regions are cold, and the combination, whatever it may happen. Okay. Okay. Different parts of the world ultimately have different type of climates depending upon their rainfall and temperature. Okay. Over the period of year, months, some have dry seasons, some have wet seasons, some have hot seasons, some have summer seasons, some have cold seasons, things like that. In India, there are 4 seasons. We'll talk about climate more as we go along. Don't worry about that. We'll talk about climate as we will talk about the GDP of countries in which there will be certain sense of agriculture present, like rice is present excessively in India and China, and also to a certain extent in Southeast Asia and Sri Lanka and things like that. So in that way, we'll talk about that rice and rubber. So don't worry about it. When we discuss about GDP and trade, which will be a crucial part of international relations, and international relations is a part of the world, which is part of our 4 point agenda or whatever you can say, 4 point discussions that we gonna discuss. Correct? World, nation, states, and you, and the Catch-22. Don't worry around that. It will be covered in one way or the another. Let's move. So, हाँ जी, पढ़ाई चल रही। गुड मॉर्निंग। हमको पता था सुबह सुबह तुम मिलोगी हमको, है ना। दोपहरिया में नहीं हो पाता लाइव। हमने ये देखा 24 घंटे अगर ये रहे, है ना, ये रहा 12 PM बजता होगा ना। यस। तो मैं यूजली यहाँ पे लाइव रहता हूँ, यहाँ पे लाइव रहता हूँ, थोड़ा मोड़ा यहाँ पे लाइव रहता हूँ। इस बीच में मैंने लाइव कम ही किए हैं, 12 से 8, 12 से 9 के बीच में, है ना। मैं यहाँ पे अलग लोग मिलते हैं, यहाँ पे तुम मिलती हो, यहाँ पे कोई नहीं मिलता है लाजली। यहाँ पे कुछ लोग मिलते हैं अलग से। तुम यहाँ मिलती हो मुझे 7 AM में, क्योंकि तुम 11 बजे सो जाती हो, 5:30 बजे टहलने जाती हो, फिर 7 बजे शुरू करती लगता है तुम भी कार्यक्रम अपना, है ना। तो मैं देखूंगा पहले कि मुझे 12 से 8 में कौन मिलते हैं, यहाँ वो कौन है। मुझे आई एम क्वाइट श्योर कि यहाँ भी कभी ना कभी जाएगा ही, और रात में तो नहीं जा रहा है कार्यक्रम, अभी रात में तो लाइव नहीं कर रहा हूँ, 12 से 6 में वगैरह वगैरह नहीं कर रहा हूँ। अभी तो मुझे पता है घूमेगी घड़ी की तरीके बहुत। अभी इसको पहले 10 दिन कम से कम और चलने दो। करीब 4-5 दिन से तो चल ही रहा है ना, एक हफ्ता तो हो ही गया होगा। अभी से कम 2 हफ्तों से और गुजरने दो, 2 संडे और पड़े बीच बीच में। एक में तो मैं पेपर ही देने जाऊंगा 28 के दिन, है ना। एक और मानो 28, 7, 5। वो पारिक जी कहाँ गई? पारिक जी पता नहीं कहाँ गई। पारिक जी पढ़ाने के, पारिक जी भी तैयार हो रही होंगी, अभी नहा रही होंगी जाने के लिए कॉलेज। कॉलेज जाएंगे फिर वो भी ऐसे पीपीटी ऑन करेंगे कि हाँ देखो, एक ये ट्रेड होता है, एक लेबर होता है, इकोनॉमी होती है, कैपिटल होता है, पूंजीवाद होता है, राइवजेंस की थ्योरम होती है, और ये, है ना, मिनिमलिस्ट डिमांड होती है, ये सप्लाई होती है, प्राइस होता है ना, और थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पता नहीं खूब सारा पढ़ाएंगे जाके कॉलेज में वो भी। उनका स्लॉट कहाँ गया पता नहीं यार। स्लॉट तो मैं ही उनके स्लॉट से आउट होऊंगा, मुझे पता है ना। पता नहीं, कुछ चीजें समय बताएंगी। हम्म। अभी तो ये है कि भैया यूट्यूब का एवरेज जो है वो भी 120 मिनट प्लस है, एज फार एज लाइव 122 के आसपास चल रहा है ना। इससे मैं कम से कम 150 तक तो खींच के ले जाऊं पहले।
यही बहुत टफ होने वाला है मेरे लिए। जून में तो मुझे लगता है काइंड ऑफ यही टारगेट रहेगा। अब देखो उस प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हो रही है ना। तुम देख ही रहे हो, मैं सुबह आने लगा हूँ लाइव, रात में भी कल आया था, है ना। तो मुझे पता है कि ये सब होगा। बहुत सारी चीजें मुझे दिख रही टू बी ऑनेस्ट, केवल यही करने के चक्कर में, 120 से 240 इसका एवरेज करने के चक्कर में, है ना। और मुझे पता था समहाउ, मुझे जब मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं ना ये बहुत पहले भी हल्का फुल्का करके देख चुका हूँ। जनरल सिंह राठौर मुझे चीट कर रहा है क्या? आई कैन डू इट। आई थिंक आई विल हैव टू डू इट एज वेल नाउ। 29 के हो गए भैया, आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बात एज की नहीं है, बात ये है कि 10 साल से आसपास, 19 से लेके 29 के बीच से में हॉट कन्या, शादी, बच्चे, गाड़ी और बंगले के पीछे तो पड़े नहीं है, है ना। सो नाउ आई गेस इट्स टाइम टू रियली डू व्हाट आई वांट टू डू। जब ये 5 चीजें नहीं है, तो जो 5 चीजें होनी चाहिए कहीं ना कहीं, जो हम अपने मन में ढूंढ रहे होंगे, डाइवर्सिटी, है ना, पीस, एक सेंस ऑफ कह सकते हो कंट्रोल, और एक सेंस ऑफ इमेंसिटी, सेटिस्फैक्शन वगैरह, कुछ तो 5 चीजें आएंगी ना। ये 5 चीजें नहीं होंगी, और क्योंकि भैया लोग 30 साल तक जीते हैं उन 5 चीजों के साथ। अगर ये 5 नहीं है तो कुछ और 5 आएंगे इनकी जगह। तो we shall see. It's time now, है ना। It's certainly I can see that कि 30 से 40 के बीच की जो एज है ना, उसमें अब now I can see that I will have to push or find these things, वरना फिर क्या तो क्या भाई। मतलब आपने सोच लिया आप पूरी लाइफ सिंगल रहोगे। नहीं, मुझे ये पता है ना कि लोग, लड़कियां जो होती है, जैसे कोई गर्ल है, मुझे पता है कि वो अपने फैमिली, मम्मी और पापा की, है ना, और उनके मम्मी और पापा उनके कास्ट के, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, तो वो अपने कास्ट से बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो इसके साथ तो नहीं फंसूंगा जो ऐसी कन्या है। अब इसके अलावा कुछ हुआ तो देखा जाएगा, बट बहुत मुश्किल है यही, है ना। अपना काम इसको ना बोलना है, उसके बाद जहाँ हाँ बोलना होगा वो देखा जाएगा। ये बात से तो अपने कास्ट, अरे तो बात तो वही हो गई कि इसमें नहीं फंसना है अगर, तो फिर अपने में फंस गए। बात तो वही हो गई ना फिर, कि गर्ल है, उसकी फैमिली है, उसकी मम्मी और पापा है, और उनके कास्ट से वो नहीं बाहर निकलना चाह रही। ये दोनों ही तो आसमान नहीं है ना, ये इमेंस है ना हमारी वाली इमेंस है। तो इसमें भी नहीं फंसना है भैया, ना इसमें फंसना है ना इसमें फंसना है। कहाँ जाना है वो नहीं पता, वो समय बताएगा। ना समझ में आई। ना दूसरे की कास्ट में फंसना है ना अपनी कास्ट में फंसना है। कास्ट में फंसना ही नहीं है, कास्ट से ही तो संघर्ष है सर। कास्ट से ही भिड़ना है, अपनी भी और उसकी भी। और बिना शादी के बच्चे नहीं हो सकते। पता नहीं आप कॉम्प्लिकेटेड हो, हाँ हो सकता है। बिना शादी के देखो बच्चे नहीं हो सकते, बच्चे नहीं हो तो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती तो कुमुलेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं हो सकती एक कास्ट की, है ना। तो सारा डिपेंडेंट तो यहीं पर है, शादी स्पेशली बच्चे। लिव इन में पॉइंट बच्चे नहीं होने चाहिए वहां पे। तुम हो ये हो, वहां पे अगर जैसे ही बच्चा आया तो फिर बच्चे के बाद प्रॉपर्टी, है ना, फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर, और उसके बीच में शादी आ ही जाती है। साथ रहोगे नहीं अगर, एक घर में नहीं रह रहे हो, रात के समय अगर, है ना, नाइट जो है वो एक साथ नहीं बिता रहे हो, तो ये तो होगा नहीं, बच्चा तो होगा नहीं। इतना तो बायोलॉजी क्लियर ही होगी। सो मेन खेल प्रॉपर्टी का है मैडम, प्रॉपर्टी का। और फिर उसमें एक सेंस में इकोनॉमी का, चाहे इकोनॉमी के अंदर, सोसाइटी के अंदर इकोनॉमी का खेल, और उसके लिए फिर पॉलिटिक्स, है ना, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, घर के अंदर की हो चाहे दोस्ती के अंदर की हो, चाहे शादी के अंदर की हो चाहे ऑफिस की हो, चाहे फिर सीएम पीएम वाली हो चाहे डीएम वाली भी हो। तो मेन दिक्कत सर ये बोल के, है ना, संडे के दिन यज्ञ करा के और फिर बाकी के 6 दिन जीवन में पॉलिटिक्स खेल के, ये नहीं करना चाह रहे हैं जीवन में कहीं ना कहीं।
देखो या तो मरेंगे या तो फिर कुछ कर लेंगे। जो होगा उस टाइम बताएगा। ये है समझ में आया, देर इज अ प्लान, देर इज समथिंग विच इज, इट्स नॉट वेरी रैंडम। ठीक है। बाकी हो सकता है तुम्हारे ऊपर ऊपर से जा रही हो तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता उसमें। थोड़ा सा अभी जीवन में आगे आओ, महसूस होगा तुम्हें ऐसा जो मैं कह रहा हूँ। चैप्टर तो कंप्लीट हो गया एक इस कन्वर्सेशन से। अरे देखो कुछ चीज जिंदगी है यार, है ना। जिंदगी है, जवानी है, शादी है, बच्चे हैं, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है ना, टाइगर है उसमें, प्रधानमंत्री जी हैं, पैसा है, और क्या है, और लग्जरी है। ठीक है, घर होता है, शमशान घाट होता है, वगैरह वगैरह ये सब है। तो इन सबसे मिलके पूरी जिंदगी बनती है। अल्टीमेटली आप सब कुछ शायद शायद में थोड़ा बिता दोगे, कुछ तो करते हुए जीना ही होगा, चॉइसेस तो बनानी होगी तुम्हें। पता नहीं, मुझे खुद नहीं फंसना, जस्ट पीस चाहिए। तुम फंसोगे नहीं, तुम फंस जाओगी ना। तुम्हारी मम्मी भी तो प्यारी होंगी, तुम्हारे पापा प्यारे होंगे, तुम्हें प्रॉपर्टी प्यारी होगी, तुम्हें एसी अच्छा लगता होगा, है ना। तुम्हें कपड़े अच्छे लगते होंगे, बढ़िया बढ़िया वगैरह वगैरह। और अभी पीयर प्रेशर भी तो बनेगा। तुम्हें नहीं तो तुम्हारे दोस्त को अच्छे लगते होंगे, है ना। भाभी को अच्छे लगते होंगे, इनकेस अगर भैया हो तो, चाहे मम बहन हो कोई, चाहे भाई हो कोई, चाहे तुम्हारा कोई दोस्त हो। अभी आई है सर, अभी आई है, अभी जीवन में उतरी है, अभी तो तुम केवल टेस्ट दे रही हो ना, अभी लाइफ का टेस्ट तो दो पहले। नीट बिट कठिन है, ऐसी बात नहीं है, और जिंदगी का लेसन उससे ज्यादा कठिन है। द अल्टीमेट टेस्ट इज फ्रीडम। ये होके दिखाओ, फ्री होके दिखाओ। आपको अपनी फैमिली अच्छी नहीं लगती है क्या? यस, गुड क्वेश्चन। मुझे वो छोटी जरूर लगती है। फैमिली जो है वो पूरी जो ह्यूमन फैमिली है उससे छोटी जरूर लगती है। इनके पास जितनी प्रॉपर्टी है, ये टोटल प्रॉपर्टी से छोटी जरूर लगती है। इनके पास जितनी बातें हैं, ये पूरी बातों से छोटी जरूर लगती है। हम्म। अभी आओ सर, अभी कभी तूने कॉन्फ्लिक्ट देखा नहीं ढंग से। बट ठीक है ना। देखो दो चीज में इंसान फंसता जरूर है, फंसेगा ही फंसेगा, नेचुरली फंसेगा, इंसान का नेचर ही है कि फंसेगा वहां पे। एक तरफ लव है, एक तरफ डिवीजन है। आई थिंक आपके कास्ट इशू रह चुके हैं पहले, नहीं मेरे नहीं है, दुनिया में जी, इंडिया में है भाई कास्ट इशू। इंडिया में कास्ट इशू, बात कास्ट की नहीं है, बात डिवीजन की है। कास्ट तो उसका एक स्ट्रक्चर है इंडिया में, बात डिवीजन की है। ठीक है। और हर इंसान, हर लड़की लड़का, है ना, इससे गुजरेगा, हमेशा गुजरेगा। एक लव होता है, एक डिवीजन होता है। जैसे ही डिवीजन होगा, प्लेजर की एंट्री हो जाती है लाइफ में, प्रॉपर्टी की एंट्री हो जाती है। बट ये एक मेजर इशू है, डिवीजन इशू है। डिवीजन कहूंगा अगर मैं, अगर तुमसे पूछो कि क्या इशू है, तो डिवीजन एक इशू है। इसका बहुत कंक्रीट स्ट्रक्चर कास्ट है इंडिया में, जहाँ की मैं रहता हूँ, जहाँ मैं घूमता फिरता हूँ, जहाँ वगैरह वगैरह वाली बातें, जितनी मेरी कनेक्टिविटी है, जितनी मेरी रीच है, वगैरह वगैरह। तो उस सेंस में ये बड़ा इशू हो जाता है। अगर ना हो तो कोई भी किसी से भी प्यार कर ले, किसी से भी शादी कर ले, लेकिन क्या कोई भी किसी से भी शादी कर सकता है क्या? मुझे कोई लड़की पसंद आ जाए कल को, ठीक है, मुझे एक कन्या पसंद आ जाए कल को, मेरे उससे शादी हो जाएगी? या फिर कोई कन्या है, उसको मैं पसंद आ जाऊं, मेरे उससे शादी हो जाएगी?
नहीं होगी तो इसके पीछे क्या रीजंस है? यू विल फाइंड देयर इज डिवीजन। उसकी कम्युनिटी और मेरी कम्युनिटी के बीच में डिवीजन है ना? इसीलिए पॉलिटिक्स है, इसीलिए इलेक्शंस होते हैं, इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस है। नेशनली हम लोग डिवाइडेड है। इंडिया पाकिस्तान एक हो जाएंगे क्या? इंडिया पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश नेपाल भूटान ये सब है तो लैंड वाइज कनेक्टेड ही, पूरा यूरोप लैंड वाइज कनेक्टेड, एक क्यों नहीं हो जाता है? ऐसे कैसे होगी कि दुनिया दुनिया नहीं चलती ऐसे? या तो बहुत कर दो फिर फैमिली कुर्बान। बट ये एक मेजर इशू है। पॉइंट ये नहीं है। अगर आप नहीं करते हो, देखो पॉइंट ये है दोस्त, अगर आप नहीं करते हो तो क्या होगा? दो चॉइसेस बनेगी, एक लव की और एक डिवीजन की। अगर आपने लव को नहीं चुना तो आप डिवीजन ऑटोमेटिकली चुन लोगे, और जैसे ही डिवीजन चुनोगे फिर प्लेजर में फंसोगे। फंसोगे ही फंसोगे, बच ही नहीं सकते। फियर में फंसोगे, कंफ्यूजन में फंसोगे, हेट और वायलेंस में फंसोगे। तुम्हें क्या लगता है फिर ये हेट और वायलेंस, फियर, प्लेजर और ये कंफ्यूजन जो है कहाँ जाएगा? ये फैमिली के अंदर भी घुसेगा। मैं ऐसे एग्जांपल देख रखे हैं। तुमने ऐसे एग्जांपल देख रखे हैं ना? हाँ। तो फैमिली के अंदर भी घुसेगा, तो जिस फैमिली को बचाने के लिए तुमने लव की जगह डिजायर डिवीजन चूज किया होगा। किसी किसी ने फैमिली चुनी तो किसी ने प्यार, कुछ प्यार वो वाला प्यार नहीं, वो लव मैरिज वाला प्यार नहीं है ये इमेंसिटी है ना? ये लव मैरिज करके शादी कर लेने वाला, फिर क्या नाम है, चार चार बच्चे पैदा कर लेने वाला प्यार नहीं है। दोनों परेशान होंगे, नेचुरली परेशान होंगे, क्योंकि तुम इस लव को वो वाला लव समझ रही हो ना, ये लव मैरिज वाला, फिर उसके बाद नहीं करनी है शादी भाई। ना शादी इधर करनी है ना इधर करनी है, ना इधर करनी है ना इधर करनी है। पहले कास्ट का स्ट्रक्चर मिटा लो। मैंने बताया तो। ना ना लव वाले से शादी करनी है, ना डिवीजन वाले से शादी करनी है, शादी ही नहीं करनी है भाई। क्योंकि शादी और बच्चे किए नहीं तुमने कि फिर उसमें बीच में प्रॉपर्टी का सेंस आ जाएगा, प्रॉपर्टी ही डिवीजन है। ठीक है, फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, फिर वॉर हो जाएंगे बड़े टर्म्स में, वगैरह वगैरह वाली बात है। परफेक्ट सिंगल रहो हमेशा। ये सिंगल चॉइस से नहीं रहा जा सकता है। यू कैन चूज टू स्टे सिंगल। तुम समझ रहे हो? जब हम ये बोलते हैं ना कि सिंगल ही रहना है ना, सो कहीं ना कहीं इस तरह का एक फीलिंग आती है कि यू आर, है ना, यू डोंट लाइक द मैरिज एंड थिंग्स लाइक दैट। पॉइंट ये है कि तुम्हें ऑल एम्ब्रेसिंग होना होता है। हाँ, ये सही वर्ड है, ऑल एम्ब्रेसिंग। सिंगल का मतलब वो तो है कि हाँ हम हैं और हम हैं, हम ही हम, पानी कम, बाकी कुछ नहीं है। ना फैमिली है, ना मेरी का, ना मेरी कास्ट है, ना दूसरे की कास्ट है, किसी की नहीं सुनेंगे, अपना बैठ के नेटफ्लिक्स देखेंगे। ये नहीं, ऑल एम्ब्रेसिंग। अपनी कास्ट से भी मिलेंगे, दूसरे की कास्ट से मिलेंगे, बट शादी किसी की से नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों गलत हैं। तो ऑल एम्ब्रेसिंग बनना है, सिंगल नहीं। अंतर समझ में आया? दोनों की कास्ट से छोटे नहीं हो जाना है, दोनों की कास्ट से बड़ा हो जाना है। अरे अभी तुम अंदर आए नहीं हो, थोड़ा अभी तुम पहले कंफ्यूजन तुम्हारी जिंदगी में उतरे ना, खुद की पर्सनल जिंदगी में, तब थोड़ा समझ में शायद मैटर आएगा। बट स्टिल वी शैल सी। अभी तो हम भी पहले आगे बढ़े, तब पता चलेगा क्या है नहीं, क्या नहीं है। मिले हो तुम हमको
बड़े नसीबों से। आप बताओ। हम पढ़े? चलो फिर पढ़ते हैं। हम कहाँ पे थे, हम तो खुद ही भूल गए। वैसे ये है अच्छा। ठीक, चलो बाय। बीच बीच में आ जाता है कोई तो लंबा चौड़ा डिस्कशन हो जाता है। ठीक ही है। आई काइंड ऑफ लाइक इट। कहाँ थे भैया? कहाँ था मैं? माँ कसम बहुत लंबा डिस्कशन हो गया लग रहा है तो। जून, कॉलेज, 11:30, बस इसी के आसपास तो कहीं था। ये था मैं। जीडीपी और क्लाइमेट की तरफ। यस। जीडीपी, क्लाइमेट एंड ट्रेड। यार आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, कैसे पढ़ोगे? नहीं, मैं डिस्ट्रैक्ट थोड़ा हुआ हूँ, ये तो मेरा काम ही ना। अरे कल मैंने बताया था कि नहीं बताया था यार? ये मेरा काम ही है। चार चीजें हैं ना। वर्ल्ड, नेशन, स्टेट और यू। ठीक है। इनका इंटरेक्शन होता है चारों को एक दूसरे से। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे ज्यादा बात करी है। ठीक है, ऊपर में क्या बात कर रहा था? क्लाइमेट, जीडीपी, ट्रेड, इन सब की बातें कर रहा था। ये लार्जली नेशन की बातें हैं, कुछ हद तक स्टेट की बातें हैं। फिर इसी से इकोनॉमी निकल के आएगी, है ना। मार्केट्स निकल के आएंगे। ये सब यू की बात ही आ जाएगी, कैरियर की। हम लोगों ने, और यू के अंदर ही तो वो है शादी भी वगैरह भी। तो कोई आता है तो इस लेवल की ज़्यादा बात हो जाती है। बट मुझे इससे इसको कनेक्ट तो करना ही है ना। तब तक मैं यूजली ये कवर कर रहा होता हूँ। तो बस ये है। ठीक। चलो कंटिन्यू। बारिश तो होती है, कहीं भी शादी करो, लव मैरिज करो ना करो, ऑल एम्ब्रेसिंग हो, सिंगल हो, बारिश तो आती है। रेन एंड टेम्परेचर तो रहता ही रहता है। ठीक। चलो बाय। चलो भैया, लेट्स मूव। um, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे क्लाइमेट की। क्लाइमेट, जीडीपी, ट्रेड, है ना। तो इंडिया में सीजन्स होते ही हैं, चार होते हैं इंडिया में। ठीक है। समर, रेनी सीजन, विंटर कह लो, और क्या होगा, ऑटमन, ऑटम कह लो, यही होगा। ये यहाँ पे होगा एक्चुअली में। ये यहाँ पे होगा ना यार। खैर, तो इसेंशियली दो तरह से होते हैं ना, टेम्परेचर और रेनफॉल के हिसाब से। तो जुलाई से सितंबर में रेनफॉल होती है इंडिया में यूजली। मानसून आता है, चार्ट बनाना पड़ जाएगा मुझे। काइंड ऑफ थोड़ा सा साउथ वेस्ट दक्षिण पवन, साउथ वेस्ट मानसून, ये रहता है, इस तरह का इंडिया है। अरे यार कैसे ही बना रहा हूँ, मतलब माँ कसम। इस टाइप का है। तो ऐसे 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 चलना चालू होता है। ऐसे 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 करके पूरा तक कवर करता है ये, है ना। तो उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, फिर यहाँ से टिक के हवाएं फिर ऐसे ऐसे घूमती हैं, ऐसे ऐसे, यही है, खूब पानी बरसाती हैं यहाँ पे। यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे हिमालय है।
इधर तो हिमालय है ना। इधर पाकिस्तान है, ये पहले इंडिया में हुआ करता था, इधर फिर थोड़ा पर्वत टाइप की है श्रृंखला, अफगानिस्तान वगैरह में। ठीक है, थोड़ा उससे और आगे एक्चुअली में। ठीक है, तो यही है। फिर एक रिट्रीटिंग मानसून होता है जो वापस आता है, फिर यहाँ पानी बरसाता है, इस तरीके से है ना। जुलाई से सितंबर में होती है, और थोड़ी सी दिसंबर जनवरी के राउंड भी होती है बारिश। ठीक, बाकी गर्मी पड़ती है अप्रैल, मई, जून, मार्च, और आ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। जनवरी तक ठंडी पड़ती है, फरवरी आई गेस एक महीना रहता है, एक मैक्स ऑटम का वगैरह वगैरह, ऐसे ही सीन है घुमा फिरा के। ठीक है, चलो भैया, तो बारिश पे डिपेंडेंट है, रेन फॉल पे डिपेंडेंट है आपका इंडियन एग्रीकल्चर। यूपी और बिहार में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है उसके थोड़ा नीचे फिर कावेरी भी बहती है। है ना, गोदावरी भी बहती है, कृष्णा भी बहती है, महानदी भी बहती है, नर्मदा भी बहती है, तापी भी बहती है, ब्रह्मपुत्र भी बहती है, सिंधु थोड़ा नीचे नहीं, वेस्ट में बहती है, और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र बहती है, तो केवल गंगा ही नहीं है। हालांकि ठीक है, चलता है। ठीक है, इधर वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल, बिहार और यूपी। ठीक है, 1757 में ये लोग यहाँ आए थे, ब्रिटिश। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और फिर ये दोनों ने मिलकर लड़ा था, तो ये घुमा फिरा के इतना एरिया ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था। ठीक, ये बहुत ही डिसाइसिव विन थी। इससे पता चलता है यहाँ की हिस्ट्री और सोसाइटी की स्टेटस के बारे में। 1764 की हम लोग बात कर रहे हैं सर, है ना, बहुत दूर भी नहीं है। 150 साल ऐड कर दोगे तो हम लोग 1800, नहीं 250 ऐड करने पड़ेंगे तुम्हें थोड़े से। 150 ऐड करेंगे कितना आएगा? 1800, 1900, है ना, 250, 2000 आ जाएगा। कितनी जनरेशन हुई? ऑलमोस्ट 10 जनरेशन पहले हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। खैर ठीक है, इतने भी डिमोलाइज होने की जरूरत नहीं है, लेट्स मूव G20 में हम लोग अब। ठीक है, तो पानी बरसता है, रेन होती है, रेन डिपेंडेंट वो है राइस की फसल। सर्दी में गेहूं होता है। और इंडिया में क्या क्या होता है? पल्सेस होती हैं, टी होती है आसाम में, कॉफी भी होती है, और क्या क्या होता है, कॉटन होता है बहुत सारा, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है इंडिया में। ठीक है, वरना इंपोर्ट करना पड़ता। तो इस तरीके से है सर, है ना। अभी इतनी बात करेंगे। हाँ, ग्राम होता है, और क्या होता है, एप्पल होता है, मैंगो भी होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और कोस्टल एरियाज में मत्स्य पालन, फिशरीज भी होती हैं। ठीक है, मतलब खाया जाता है डिसेंट अमाउंट में। तो ये है रोटी सब्जी चावल दाल। रोटी सब्जी चावल एंड दाल, ये स्टेपल फूड है, ठीक ठाक इंडियंस का। NFSA है ही है, उसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं, वहां से ये राइस और रोटी और चावल हुआ, राइस एंड व्हीट, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लार्जली। अब तो वहाँ पे पार्ले जी के बिस्कुट और क्या नाम है, तेल वगैरह और नमक वगैरह सब बिकने लगा है। ठीक ही है, इन वन सेंस 80 करोड़ लोग हैं जिनको मिलता है NFSA के थ्रू फूड। जस्ट लेट यू रिमाइंड यू डीप फीलिंग्स। खैर, तो ये बात है, लेट्स मूव। यानी कि देखो भैया, NFSA, PDS और रोटी सब्जी चावल दाल,
है ना। ठीक है, माइंड यू केवल इससे काम नहीं चलेगा। वेजिटेबल ऑयल और एलपीजी, इतना तो चाहिए भैया खाने के लिए। एलपीजी के सिलेंडर महंगे हो जाते हैं, प्राइसेस। और भैया केवल इतने भी नहीं, थोड़ा यूजली लोग ऑफिस गोइंग है तो पेट्रोल भी, रूम रेंट्स और फिर इलेक्ट्रिसिटी, 20,000 की सैलरी। ठीक, थोड़ा बड़ा ये इनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इसमें वेजिटेबल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ओनियन, टोमेटो, पोटैटो, हरी सब्जी है, भिंडी वगैरह वगैरह। राइस के दाम यूजली नहीं बढ़ते हैं जहाँ तक मैंने देखा है। ठीक है, पल्सेस के दाम बढ़ जाते हैं। तो इस तरह का सीन है। वीट के दाम भी यूजली मैंने ज़्यादा बढ़ते हुए तो नहीं देखे, इधर बीच वाले रशिया यूक्रेन वगैरह में जो था वो बढ़ गया था। ठीक है, तो इंडिया वाले एक्सपोर्ट बैन कर दिया था वगैरह वगैरह। ठीक, तो ये चीज़ें हैं इसेंशली। खाना, पेट्रोल, एलपीजी, ये हम इंपोर्ट करते ही बनाते ही, इंडियन वगैरह है हमारे पास। और वेजिटेबल ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं डिसेंट अमाउंट में, सनफ्लावर ऑयल एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक, पॉपुलेशन हमारी है ही और फिर उससे वो बढ़ती है तो उसे खाना तो खिलाना ही होगा। और अब हाउसिंग चाहिए, हाउसिंग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और रियल एस्टेट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट में टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर। आ रहे हम लोग शादी की तरफ, बस यहीं शादी होने वाली, यहीं कहीं होगी आसपास। घर ले लो, गाड़ी, बंगला, कार, तुरु तुरु तुरु। बैंक, एजुकेशन लोन, है ना, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन, ले लो लोन। खैर, लेट्स मूव। ये हो गया। और हम लोग क्या बात करेंगे, बैंकों में एसबीआई बड़ी है, प्राइवेट में एचडीएफसी बड़ी है, फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होती हैं, आरबीआई है तुम्हारा, वगैरह वगैरह वाली बातें हैं। और आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। आई नो क्या वी आर एक्टिंग लाइक डिस्ट्रैक्टेड, बट दैट्स ओके, एज लॉन्ग एज डिस्ट्रैक्ट तो आपको होना ही पड़ेगा सर, अदरवाइज यू आर सेटल्ड। सेटल्ड इज नॉट गुड, है ना। ओनली यू कैन बिकम डिस्ट्रैक्टेड देन यू कंसोलिडेट। तो ऐसा है सर, है ना। तो वी कैन सी व्हाट वी आर अराइविंग एट, स्लोली वी आर कमिंग फ्रॉम नेशन टू स्टेट एंड देन यू। वर्ल्ड से हम लोग थोड़ा नीचे आ चुके हैं, तभी हम लोग आरबीआई एंड इंडियन एग्रीकल्चर इन सब की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड एग्रीकल्चर की हम लोगों ने बात नहीं की, तो यू कैन सी दैट हम लोग इंडिया में अराइव हो चुके हैं, है ना। इंडिया ग्राउंड ज़्यादा घूम रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक ही है, वर्ल्ड क्लाइमेट। देखो रशिया वगैरह में, है ना, काफ़ी ठंडी पड़ती है। यूरोप में भी ठीक ठाक ठंडी पड़ती है, अफ्रीका में गर्मी पड़ती है, बारिश भी बहुत सारी होती है वहाँ, तो इक्वेटर के आसपास का रीजन है। ऑस्ट्रेलिया नीचे पड़ता है तो अगेन ठंडी पड़ती है। आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, वहाँ पे भी ठंडी पड़ती है। अमेरिका में भी ठंडी पड़ती है, कनाडा में भी ठंडी पड़ती है। ब्राज़ील थोड़ा अगेन नीचे पड़ता है, सो वो अलग है, लेटिनास, आई लाइक देम, लेट्स मूव। अर्जेंटीना, चिली, वहाँ पे भी ठंडी पड़ती है। तो बहुत सारे ठंडी जगह हैं दुनिया में। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पानी बहुत बरसता है, बहुत सारी ऐसी जगह जो गर्म बहुत है, रेतीला इलाका है, नॉर्दर्न अफ्रीका और मिडिल ईस्ट, है ना, यूएई, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया वगैरह वगैरह। ठीक है, इजिप्ट, तो रेतीला इलाका भी काफ़ी है, वहाँ पानी बहुत कम होता है। हॉट डिजर्ट्स होते हैं, कोल्ड डिजर्ट्स होते हैं। ठीक, इसेंशली कुछ एरियाज बहुत गर्म है, कुछ एरिया बहुत ठंडे, कुछ एरिया बहुत पानी बरसता है, कुछ एरिया कम पानी बरसता है। यही चार लार्जली डिविजन्स हैं। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी के आसपास एक अलग ही क्लाइमेट पाई जाती है। मेडिटेरेनियन सी के आसपास बहुत सारे देश हैं, नॉर्दर्न अफ्रीका से भी जुड़े हुए हैं, उधर यूरोप पड़ जाता है, इटली, स्विट्जरलैंड, है ना, स्पेन, पोर्चुगल, लेबनान, सीरिया, टर्की, ग्रीस, तो ये सब है। ठीक, क्लाइमेट का असर वॉर पे भी पड़ता है ना, क्योंकि आप सर्टेन 1971 में ठंडी के बाद युद्ध हुआ था। ठीक है, अभी रसिया यूक्रेन में ही रुक गए थे ये लोग, ठंडी पड़ रही थी जब एक्सट्रीम, तो अभी जब वहां पे थोड़ी बर्फ पिघली है तो फिर वो लोग और बम मारने पे उतरे हैं। सो वॉर, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लो आप आर्कटिक से जा रहे हो, चाहे अंटार्कटिक से जा रहे हो, वहाँ बर्फ ही जम गई तो दिक्कत होगी। पानी बहुत बरस रहा है, तूफान आ रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है,
नेचर हो गया ना अल्टीमेटली ये सब तो। ठीक है। लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर में अर्थ केक आ जाता है, एटमॉस्फेयर में साइक्लोन आ जाते हैं, साइक्लोन साइक्लोन एंटी साइक्लोन आ जाता है। ठीक है। हाइड्रोस्फीयर में देखोगे तो फिर सुनामी वगैरह आ जाती है। ठीक है, ये सब नेचर है। उसके लिए फिर एनडीआरएफ एसडीआरएफ ये सब बना हुआ है। नेचुरल डिजास्टर्स होते ही रहते हैं। इंडिया में ठीक ठाक हुए, गुजरात में भी ऊपर उत्तराखंड क्लाउड बस्ट हुआ था, वाटर क्राइसिस हुआ था, होता चला जा रहा है ना। एक क्लाइमेट चेंज तो ऑब्वियसली है ही है, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, उसके लिए पेरिस पेरिस क्लाइमेट डी एंड थिंग्स लाइक दैट, पता नहीं क्या नहीं क्या, क्योटो प्रोटोकॉल, बोटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल। न्यूक्लियर थ्रेट एक इशू है, डेमोक्रेसी का एक इशू है, डेमोक्रेसी बैकस्लाइडिंग। तो इस तरीके से इशूज है ही हैं, है ना। हर देश का एक फाइनेंशियल फिजिकल इशू हो जाता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट वगैरह, कि फिजिकल डेफिसिट बहुत ऊपर नहीं जा रहा है, बहुत लोन नहीं ले लिया है। लोन का एक अलग ही इशू, फिर उसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वो सब आ जाता है। ठीक है, चाहे जो ब्रिक्स वगैरह के बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो सब बन रहे हैं। तो देख रहे हो ना, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े जोन्स हैं, वो इंटरेक्ट करते रहते हैं। वॉर है, एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट है, पॉलिटिक्स है, इलेक्शंस हैं, है ना, राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर, वुमेन, और पॉवर्टी का मुद्दा है। ठीक है, भुखमरी का मुद्दा है, चाहे हंगर का मुद्दा, इशूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर है। गवर्नेंस का एक मुद्दा रहता है, ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा रहेगा, अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा रहेगा, वॉर एंड पीस, ट्रेड कैसे कितना हो रहा है, रीजनल इंटीग्रेशन, रीजनल पीस, बैलेंस ऑफ पावर। तो इस तरह की चीजें हैं, है ना। वो ऊपर तो हो ही रही होती है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, अंदर आओगे तो स्टेट लेवल पे भी वो सब बहुत कारगर होती है, फिर अल्टीमेटली तो फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर वो असेंबली, लोकसभा सीट, असेंबली सीट, और ब्लॉक एंड वार्ड, और ब्लॉक से होते हुए फिर फैमिली और फॉर्म, और फिर तुम्हारे जीवन के अंदर, तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम्हारे थॉट्स के अंदर घुस जाते हैं वो लोग, घुस ही जाते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। इसी वजह से तुम सोच रहे हो तो ज्यादा उतना, अगर उतना कंफ्यूजन बाहर ना हो तो तुम्हारे अंदर भी नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो बाहर भी नहीं टिकेगा, नहीं टिक सकता है। तो इट्स लाइक दैट। तो ये कारवा है सर, यू सी इट। आपको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो आई थिंक इतना बहुत है, बहुत तो नहीं है टू बी ऑनेस्ट, मैं और करना चाह रहा हूँ यहाँ पे इसे। हम्म। और मैं करना चाह तो रहा हूँ। ओके, लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई इट। हम्म। इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं यार। हम लोगों ने वहीं पे जो इंटरनल ले लिया था ना, इंडियन इकोनॉमी में देखो, तीन सेक्टर तो होते ही, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। इसमें हम लोगों ने कुछ क्रॉप्स की बात कर ली, क्रॉप्स का इंश्योरेंस भी होता है। ठीक है, क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्रॉप्स का स्टोरेज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स उसको बोल लो बेसिकली, है ना। फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है ना। और फिर अल्टीमेटली इसका कंजम्पशन भी हो जाता है, फिर एक्सपोर्ट हो जाता है। भाई रखा तो रहेगा नहीं, इसके लिए तुम्हें कोल्ड स्टोरेज चाहिए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए ही, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ नहीं आती बहुत ज़्यादा, और वो लैंड भी छोटा होता चला जा रहा है। फिर अल्टीमेटली वो रूरल इंडिया की बात हो जाती है, रूरल एंड अर्बन डिवाइड आ जाएगा वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी का डिवाइड आ जाता है, डिजिटल डिवाइड आ जाता है, एजुकेशनल डिवाइड आ जाता है ना, ह्यूमन राइट्स डिवाइड आ जाता है, थिंग्स लाइक दैट। इस तरह की बातें आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग में तो इंडिया में क्या क्या मैन्युफैक्चर होता है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करना चाह ही रहे हैं, स्पेस है, मिसाइल्स हैं, और क्या क्या बनता है, फार्मास्यूटिकल्स स्पेशली बनते हैं इंडिया में, लिम्स बनते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स बनते हैं, है ना। और क्या क्या बनता है, स्मार्टफोन्स बन रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स की फैक्ट्री लगी हुई है। ठीक है, HAL एंड थिंग्स लाइक दैट, एरोप्लेन्स बनते हैं। सर्विस सेक्टर तो बहुत बड़ा ही है ही इंडिया का, IT, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, लीगल सर्विसेज, टूरिज्म, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है। तो भैया आसपास मेरे सब शायद 190 लाख करोड़ के आसपास की इकोनॉमी है, हम इसे डिस्कस करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है। अब ठीक है, अब मैं जा सकता हूँ आई गेस, इतना बहुत है। ठीक। चलो, बाय फिर। 20 मिनट का मैं थोड़ा सा इनएक्शन कर लेता हूँ, उतना बहुत है मेरे लिए।
कम से कम अभी. So what new pattern we are seeing is a 45-minute session, especially in the morning.